لیکن ہم سب میں سے جتنے لوگ بھی یہاں موجود ہیں اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، سب رشتوں میں بندھے ہیں، سب مائیں بہنیں بیٹیاں باپ بیٹے ہیں. ہم سب کو احساس ہے کہ یہ رشتے کتنے بڑے ہوتے ہیں. میں صرف ان کی بات سن کے یہ سوچ رہی ہوں کہ جب آپ کا پیارا کوئی چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو جاتا ہے، آپ کی نظروں کے سامنے ہو جاتا ہے، آپ اس کو مٹی کے نیچے دفنا کر آتے ہیں، قبر میں دفنا کے آتے ہیں، رہتی زندگی تک کبھی اس کی یاد انسان کو نہیں بھولتی، جینے نہیں دیتی، اس کی تکلیف انسان کے دل میں رہ جاتی ہے. لیکن اس انسان کا غم، مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا غم ہوگا جو روز صبح اٹھ کر اپنے پیاروں کا انتظار شروع کر دیتے ہیں اور رات کو سوتے تک دروازہ دیکھتے رہتے ہیں، آنکھیں راستہ تکتی رہتی ہیں. اور ذرا اپنے اوپر اس کو طاری کر کے سوچیں کہ کسی بچے کو یہ نہ پتا ہو. یہ میں ابھی یہ بینر دیکھ رہی ہوں، ایک یہاں پر تھا وہ جو کہا ہے کہ میرے پوتے، آپ نے اٹھایا ہوا تھا، میرے پوتے اسکول میں ہیں، کیا بتائیں کہ وہ یتیم ہیں یا ان کے بابا زندہ ہیں. مطلب جن بچوں کو یہ پتا نہ ہو کہ ہم یتیم ہیں یا ہمارا والد حیات ہے، جس ماں کو یہ پتا نہ ہو کہ میرا جو بیٹا ہے وہ زندہ ہے کہ مر گیا ہے، کسی بیوی کو یہ پتا نہ ہو کہ وہ بیوہ ہے یا اس کا شوہر حیات ہے، کسی بیٹی کو یہ پتا نہ ہو کہ اس کے والد زندہ ہیں یا نہیں زندہ. یہ ہم بات کرنے میں تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کے کیا احساسات ہیں، ان کے دلوں پر کیا قیامت روز گزرتی ہے. اور کئی سالوں سے، یہاں 2008 سے میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ ان کی جو ان کے والد ہیں وہ 2009 سے لاپتہ ہیں. آپ سوچیں کہ کتنے سال ہو گئے ہیں اور یہ لوگ روز اسی کرب سے گزرتے ہیں. یہ عزت والے لوگ ہیں، اپنے گھروں میں عزت سے رہنے والے لوگ ہیں، اور یہ اسلام آباد کی گلیوں میں، اسلام آباد کی سڑکوں پہ سردی کے موسم میں راتوں کو کھلے آسمان کے نیچے یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. کوئی ان کے، میں سمجھتی ہوں، مجھے اس چیز کا احساس ہے، ادراک ہے کہ پہلے انسان کی باتیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، بڑے بڑے سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کو اقتدار مل جاتا ہے تب انسان کی پرائیورٹیز بھی بدل جاتی ہیں، تب انسان کی مجبوریاں بھی سامنے آ جاتی ہیں. لیکن میں صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا مجبوریاں جو ہیں انسان کی، وہ اس کے فرض سے بڑی ہوتی ہیں؟ فرض جو ہے، چاہے آپ سلیکٹڈ ہیں، آپ کو جس طرح بھی بٹھایا گیا اقتدار میں، لیکن آپ کا فرض ہے، ریاست کا فرض ہے. ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، ملک ماں کی طرح ہوتا ہے. آپ کا فرض ہے کہ اگر آپ ان کو یہ نہیں بتا سکتے یا آپ ان کے پیاروں کو واضح آپ نہیں کر سکتے، آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ جن کے لوگ اس وقت ٹارچر سیلز میں ہیں، آپ ان کو بتا دیں کہ ان کے پیارے کہاں ہیں. آپ کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، ایجنسیز کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں. میں ملک کی ایجنسیز سے بھی یہ کہتی ہوں کہ آپ کی بھی مائیں بہنیں بیٹیاں، آپ کی اولادیں ہیں، آپ کے والدین ہیں. خدا کے واسطے آپ ان کو صرف یہ بتا دیں کہ ان کے پیارے مر گئے ہیں یا زندہ ہیں. وہ کچھ نہیں کریں گے، چپ کریں گے، رو دھو کے چپ ہو جائیں گے، لیکن ان کا روز کا جو ایک وہ قیامت ان کے دل پہ گزرتی ہے، وہ تو اس کو تو قرار آئے گا. اور میں عمران خان صاحب کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پرائم منسٹر ہاؤس یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، صرف 5 منٹ کا شاید راستہ نہ ہو. اور یہ بچیاں کہہ رہی ہیں، مجھے بتا رہی ہیں کہ یہ 1 ہفتے سے یہاں آ کر بیٹھی. آپ نے ایجنسیز کو جواب نہیں دینا، آپ نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. یہ 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ آپ کی ذمہ داری ہیں. آپ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. آپ ان کے سر پہ ہاتھ تو رکھ سکتے ہیں، یا آپ کو صرف کہنے کے لیے یہی باتیں ملی ہیں کہ میں لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا. یہ لاشیں نہیں ہیں، یہ زندہ لاشیں ہیں، لیکن جیتے جاگتے لوگ ہیں. آئیں ان کی بات سنیں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں. میرا خیال ہے کہ وہ اسی بات سے ان کو تسلی ہو جائے گی کہ کم از کم کسی نے آ کے ان کی فریاد کو سنا ہے. اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم نہ آپ خود یہ اس قسم کے بیانات جاری کیا کریں کہ میں لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا، نہ آپ اپنے وزراء کو منع کر سکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مجبور لوگ جب سڑکوں پہ آتے ہیں، ڈی چوک میں آتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، تو آپ یہ کہتے ہیں. آپ کا دل ہے، آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا، آپ کا دل کانپتا نہیں ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ
आउटडेटेड या एक्सपायर्ड शेल्स पड़े हुए थे आंसू गैस के, हम तो वो टेस्ट करके देख रहे थे। तौबा अस्तगफार में मतलब ये इंसान की बातें आपकी कब्र तक आपका पीछा करेंगी। और फिर आप ये कहते हैं, आज मैं किसी वफाकी वजीर का, जिनका मैं नाम भी लेना नहीं चाहती, वो आज ये बात कर रहे थे कि बलूचिस्तान में ऐसे हो रहा है और पंजाब तो ये करता है। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, जो मजलूम होता है उसका कोई सूबा नहीं होता। सिंधी, पंजाबी, KPK का भी कोई हो या बलूचिस्तान का कोई हो, मजलूम होता है, उसका कोई सूबा नहीं होता। खुदा के लिए ये लोगों के ज़ख्म पे नमक न छिड़कें। तो कम अज़ कम आप अपने वज़रा को मना करें कि वो इनके ज़ख्मों पे नमक ना छिड़कें, और आप आएँ इनके सर पे हाथ रखें। मैं आर्मी चीफ से भी ये कहना चाहती हूँ, और मैं DGISI से भी ये कहना चाहती हूँ कि ये आप ही के मुल्क के लोग हैं, आप ही की बेटियाँ हैं, आप ही की माएँ हैं। आएँ इनके साथ बात करें, इनका जो मसला हल हो सकता है उसको हल करें। जो इनके लोग ज़िंदा हैं उनको कोर्ट्स में प्रोड्यूस करें, और जो ज़िंदा नहीं है कम अज़ कम उनको इत्तला दे दें कि वो लोग ज़िंदा नहीं हैं। और रोज़े महशर को याद रखें, अल्लाह ताला का खौफ रखें। हुक्मरान की पूछ बहुत बड़ी है। हुक्मरान तो आप हज़रत उमर फ़ारूक की मिसालें देते हैं ना, तो उनका दौरे हुकूमत याद रखें और फिर अपनी तरफ एक नज़र दौड़ाएं और शर्म करें। मैम ये बताइएगा कि मिसिंग पर्सन जो कमीशन था उसको आप कैसे देखती हैं? जुडिशरी का इसमें क्या रोल है, और क्या कोई इस मामले पे कोई लीगल कोई इनको असिस्टेंस? अभी आपके सामने इन्होंने ये बात की कि जब कमीशन बना, कमीशन की जो फाइंडिंग्स हैं आपने उनको माना ही नहीं, तो आप जितने चाहे कमीशंस बना दें। ये कमीशंस जो है ना, ये आई वॉश होते हैं भाई। इनका ये होता है टाइम बाय करने का तरीका। इनका हल हो सकता है, मैंने तो ये कहा ही नहीं है। अगर उन्होंने कोई कसूर किया है तो आप उनको सजा दें, आप उनको बताएं उनके घर वालों को कि आपके जो फैमिली मेंबर है उसने ये कसूर किया है। लेकिन अगर कोई दुनिया से चला गया उनको इतला तो करें, ये उनका बेसिक हक है, ये ह्यूमन राइट्स हैं। आपको ये पता हो कि आपका प्यारा है भी नहीं, है भी या चला गया दुनिया से। हज़रत उमर फारूक की ये मिसालें देते हैं, तो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत आपका था। अभी ये बता रहे थे 2015 में, 2016 में, उससे पहले 2009 का भी आपने खुद जिक्र किया कि लापता अफराद हुए। उस वक्त हुकूमत ने क्यों इक़दाम नहीं उठाया? एक चीज़, उस वक्त इमरान खान इज़हार यकजहती के लिए आते थे, आज आप यहाँ पे इज़हार यकजहती के लिए आए हैं। क्या सिर्फ इज़हार यकजहती से इनका ये मुस्तकिल मसला हल होगा या नहीं होगा? इसका हल क्या है ये बताइएगा। देखिए, मैं इस वक्त सवाए इजहार यकजहती के और कुछ नहीं कर सकती, और मैं सिर्फ इनकी बात सुन सकती हूँ, उनको ये एहसास दिला सकती हूँ कि ये बलूचिस्तान से हैं, लेकिन ये अकेले नहीं हैं। बलूचिस्तान से अगर ये हैं तो ये मुल्क की बेटियाँ हैं, मुल्क की माएँ हैं। और पंजाब से के जो लोग हैं या बाकी सूबों के जो लोग हैं वो इनके साथ खड़े हैं। बलूचिस्तान जो है वो ज़ख्मी सूबा है, उसके शिकायत जो हैं वो ठीक भी हैं, लेकिन जब आपका कोई सूबा नाराज़ होता है, उसकी तकलीफ़ें होती हैं, उसकी जेन्युइन शिकायतें होती हैं, तो आप उनको धक्का देकर परे नहीं करते, आप उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। तो अगर इक़्तिदार के बाद, मैं अपनी बात कर रही हूँ, अपनी जमात की भी बात कर रही हूँ, अगर इक़्तिदार के बाद आप इतने मजबूर हो गए हैं कि आप अपने बेसिक फ़र्ज़ को भूल गए हैं, आप बेहिस हो जाते हैं, आप अपनी जो फ़र्ज़ है आप उसे अदा नहीं कर सकते, तो ऐसे इक़्तिदार से इक़्तिदार में ना होना अच्छा है। ये बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब भी यहाँ मिसिंग पर्सन कैंप में आए थे, 2010 में आए थे, और उन्होंने 50 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान भी किया था लवाहिकीन की फैमिलियों के लिए कि जिनके घरों में चूल्हा नहीं चल रहा, उनकी मुश्किलात कुछ कम हो सके। लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद जब यहाँ चौधरी निसार साहब वज़ीर दाखिला थे, तो आमना मसूद जंजुआ जो हैं इनको यहाँ पे लेडीज़ पुलिस ने घसीटा और दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन मियाँ साहब की इंटरवेंशन पे रात को मुकदमा खारिज हो गया था। तो आपसे सिर्फ ये पूछना है कि अगर अल्लाह ताला आपको दोबारा मौका देता है, इस मुल्क के इक़्तिदार की गद्दी पे बिठाता है, तो आपकी क्या पॉलिसी होगी कि इन लोगों के मसाइल का कोई हल निकल सके? वो पॉलिसी मैंने अभी आपको बता दी कि अव्वल तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसा सलूक अपने ही लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपका कुछ सिक्योरिटी की मजबूरियाँ हैं, अगर आप को लगता है कि किसी ने कोई जुर्म किया है, कोई उसमें मुलव्विस है, तो उसका एक तरीका कार है। उसका ये तरीका नहीं है कि आप रात को उसको घर से उठा के ले जाएं और 10 साल तक आप उसके घर वालों को ये ना बताएं कि आपका प्यारा है किधर।
कम अज कम देखिए, कम अज कम जो भी उनका जहाँ भी जो भी स्टेटस है उनका, वो जिंदा हैं या मर गए हैं या टॉर्चर सेल्स में हैं या कहीं भी हैं, कम अज कम उनके घर वालों को बता दें ताकि उनको चैन आ जाए। लास्ट क्वेश्चन। और फिर दूसरी बात ये कि अदालतें हैं इस मुल्क में, अगर आप शो ऑफ हैंड्स का और ओपन बैलेट को अदालत में ले जा सकते हैं तो अदालतें खुली हैं, इनके मुकदमात अदालत में चलाएं, लोगों को पता चले। अब आपको सेनेट के इलेक्शन जब आपने चोरी किया उस वक्त आपको शो ऑफ हैंड्स याद नहीं आया, अब आपको लगता है कि आप हार जाएंगे या आपके लोग चले जाएंगे तो आप उनका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ले गए, तो इनका मुकदमा भी ले जाएं अदालतों में। अदालतें बनी हुई हैं, दहशतगर्दी के लिए भी बनी हुई हैं, हर चीज़ के लिए बनी हुई हैं, स्पेशल कोर्ट्स बने हुए हैं, आप लेकर जाएं, लोगों को पता चले कि वाकई कसूरवार हैं या आपसे गलती हुई है। एक दिहाई से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज आप। और मैं ये भी बता दूं, मुझे ये भी पता चला है, मुझे खुद बलोचिस्तान से ये पता चला है कि इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं या ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया और गलती हो गई है, और वो या तो बेचारे अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, कुछ भी हो गए, इनको बता दो भाई, बस मैं इतना चाहती हूँ। अच्छा मैम, एक दिहाई से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो रास्ता आज आप हुकूमत को दिखा रही हैं, ये आपके वक्त भी ये ऑप्शंस खुले हुए थे, तो आपके रास्ते में रुकावट क्या चीज़ थी? मैं इन मामलात को नहीं जानती, मैं ये ज़रूर समझती हूँ क्योंकि मैंने दूर से देखा है, मजबूरियाँ हैं, होती हैं, लेकिन फ़र्ज़ से बड़ी मजबूरी नहीं होती। मैंने जो बात अभी की मैं दोबारा करूँगी कि अगर कोई मजबूरी है, अगर इसमें कोई चीज़ भी आड़े आती है तो इनको इत्तला करें, इनसे बात करें, और अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो 5 मिनट का रास्ता है, आएँ और इनके सर पे हाथ रखें। नहीं आ सकते अपने किसी वज़ीर को भेजें, नहीं भेज सकते तो कम अज़ कम इनह्यूमन स्टेटमेंट्स इशू ना करें जिनसे लोगों के दिल जो है वो छलनी हो जाए। मैडम 2016 से हुक्मरान हर चीज़ नहीं कर सकते, मुझे अंदाज़ा है, लेकिन कम अज़ कम सर पे हाथ रख सकते हैं। मैडम 2000 मुझे आज भी वो दिन याद है, मुझे आज भी वो दिन याद है। क्या हो सकी? नहीं, अभी उन्होंने बताया, अभी उन्होंने आपके सामने बताया कि आमना साहिबा के ऊपर, जंजुआ साहिबा के ऊपर पर्चा कटा, उनको घसीटा गया और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने फौरन उसको वापस किया। ये तो कर सकते हैं ना आप। मैम, इतने सालों से आप बरसे बता रहे हैं, अगर नेक्स्ट टाइम फ्यूचर अगर आप आती हैं तो क्या आप समझते हैं कि मुल्क की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करेंगी या अभी तक पाकिस्तान के मुल्क में लोगों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी होती है? अल्लाह खुश रखे। इंसानी हकूक़ लेने के लिए रोड पे बैठे हैं, क्या ज़रा थोड़ी देर में आते हो? देखिए, हुकूमत का बेसिक फ़र्ज़ जो है ना, बेसिक फ़र्ज़ वो अपने लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाना है। अब मैं यहाँ पर कोई सियासी बात नहीं करना चाहती, लेकिन जहाँ लोग बेसिक अपनी जो नीड्स हैं, खाना पीना, अद्वियात, इलाज, जब उसकी दहाइयाँ दे रहे हों और यहाँ आकर हर तबका, क्या वो मिसिंग पर्सनस हैं या वो सरकारी मुलाजमीन हैं या वो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं या डॉक्टर्स हैं, कुछ भी हैं, हर कोई आज सरापा एहतजाज है और ज़ाहिर है लोगों की ज़िंदगियाँ अज़ाब हो गई हैं। तो ये मैं तो ये समझती हूँ कि ये समझ नहीं आ रही कि क्या अल्फाज अदा करूँ कि हर बंदा आज सड़कों पे है, लेकिन आपके अंदर इतना भी एहसास नहीं है कि आप उनकी बात सुनें। आप उल्टा उनको मारते हैं, उनके ऊपर शेलिंग करते हैं, लाठी चार्ज करते हैं, उनको दुश्मन बनाकर पेश करते हैं। ये बहुत शर्म का मकाम है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।